اصطلاح کے اعتبار سے جن اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو کہتے ہیں جس نے انہیں آگ کے شعلوں سے پیدا فرمایا ہے اور وہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے خود کو مختلف اشکال میں ڈھال سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 1.25 لاکھ سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کر کے ان کا زمین پر بسیرا کیا تھا، لیکن پھر ان کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آسمان پر رہنے والے جنات کو ان شریر جنات کی سرکوبی کے لیے زمین پر جانے کا حکم دیا، تو زمینی جنات ان کے خوف سے ویرانوں، کھنڈروں اور جنگلوں اور درختوں پر جا چھپے۔ بعد میں ابلیس نے بھی اللہ کی سرکشی کی تو اسے بھی آسمان بدر کر دیا گیا، تو وہ بھی زمین پر آ کر ان شریر جنات کو اپنا حواری بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ جنات اور شیاطین ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی دونوں آگ کی پیداوار ہیں۔ جنات انسانی روح کی طرح لطیف جسم رکھتے ہیں، لیکن جب یہ کسی جسم میں حلول کرتے ہیں تو ان کی طاقت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جنات کی بے شمار قسمیں ہیں، مگر ان کے 70 گروہ زیادہ مشہور ہیں، جس کے ہر گروہ میں 70 ہزار قبیلے ہیں اور ہر قبیلہ میں 70,000 جنات ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر تو ویرانوں اور کھنڈرات میں رہتے ہیں اور زیادہ تر شیاطین گھروں میں بسیرا کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں بہت سے عامل نجومی اور جادوگر اپنا جال پورے معاشرے میں پھیلائے بیٹھے ہیں، اور بہت سے راسخ العقیدہ لوگ ان کے پاس جا کر پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنے عقائد اور ایمان کا سودا کرتے ہیں۔ بھوت، آسیب اور جنات کا تصور انسانی تاریخ جتنا پرانا ہے، اور یہ بھی کہ جنات کے وجود کی تصدیق قرآن پاک میں بھی بیان فرما دی گئی ہے۔ اس کہانی میں چونکہ جنات کا ہی ذکر ہے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ کی معلومات کے لیے تھوڑا پس منظر بیان کر دیا جائے، تاکہ کہانی سنتے وقت آپ کے ذہن میں اٹھنے والے سوالات کا جواب خود ہی مل جائے۔ گاڑی کے اسٹیشن پر رکتے ہی جمیل نے اپنا سفری بیگ اٹھایا اور جلدی سے پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ پلیٹ فارم پر اترنے والا وہ تنہا مسافر ہی تھا، اور 1 منٹ کے سٹاپ کے بعد گاڑی نے وسل دی اور دوبارہ اپنی منزل کے جانب گامزن ہو گئی۔ گاڑی کے جاتے ہی پلیٹ فارم پر دور دور تک اندھیرے کا راج تھا۔ شام نگر کا پلیٹ فارم نہ ہونے کے برابر ہی تھا۔ جب سے انگریز یہ ملک چھوڑ کر گئے تھے، اس وقت سے اس طرح کے کئی اسٹیشن ویرانوں میں تبدیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ اس طرح کے پلیٹ فارم پر تو لگتا تھا کہ کوئی اسٹیشن ماسٹر بھی تعینات نہیں کیا جاتا، بلکہ دوسرے لفظوں میں ایسے اسٹیشنوں پر کوئی بھی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ شاید اسی وجہ سے تنگ آ کر حکومت نے ان کی طرف توجہ دینی چھوڑ دی تھی، اور پھر رفتہ رفتہ یہاں ویرانی اور اندھیروں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ جمیل شہر میں ملازمت کرتا تھا، اور اس کے ماں باپ شام نگر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس کی ایک چھوٹی بہن زکیہ تھی، جس کی عمر 8 سال تھی، جو توتلی زبان میں بولتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے خوبصورت شکل و صورت سے نوازا تھا، لیکن اس کی زبان میں توتلا پن رکھ دیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جب وہ توتلی زبان میں کوئی بات کرتی تو سننے والا بڑے شوق اور توجہ سے اس کی باتیں سن کر محظوظ ہوتا تھا، اور پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے دعائیں دیتا تھا۔ جمیل اس سے بہت پیار کرتا تھا، کیوں نہ کرتا، آخر وہ اس کی اکلوتی بہن تھی۔ گاؤں میں تھوڑی بہت زمین تھی جس سے بڑی مشکل سے گزر بسر ہوتی تھی۔ جمیل چونکہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بہت حساس بھی تھا۔ وہ اکثر اپنے گھر کے حالات کے بارے میں سوچتا رہتا کہ ایسا کیا کرے کہ اس کے ماں باپ کو بھی کچھ سکون کا سانس مل سکے۔ گاؤں کے ہائی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے مزید آگے پڑھنے کے بجائے کراچی شہر جا کر قسمت آزمانے کا سوچا۔ پہلے تو اس کے والدین نے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ انہیں کس کے سہارے چھوڑ کر جانا چاہتا ہے، لیکن پھر اس کے یقین دلانے پر کہ وہ ان سے دوسرے تیسرے روز رابطہ رکھے گا، نیز چونکہ گاؤں میں سوائے محنت مزدوری کے اور کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ کراچی جا کر کوئی اچھا کام کر کے پیسہ کمانا چاہتا تھا، تاکہ اس کے گھر کے حالات بھی کچھ بہتر ہو سکے۔ اس کے سمجھانے بجھانے پر اور اس کی ضد کو دیکھتے ہوئے بالآخر اس کے والدین کو اجازت دینا ہی پڑی۔ کراچی میں جمیل ایک ہوٹل میں کاؤنٹر پر ملازم ہو گیا، اور اسے ایک معقول تنخواہ پر رکھ لیا گیا۔ اپنے تھوڑے بہت خرچے کے لیے کچھ پیسے رکھ کر وہ بقایا پیسے باقاعدگی سے گھر بھجوانے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے گھر کی حالت کچھ بہتر ہونے لگی۔ اس کے والدین بھی اس سے بہت خوش تھے کہ اس نے اپنی محنت سے انہیں بھی کچھ سکون کی سانسیں میسر کیں۔ جمیل کو کراچی میں ملازمت کرتے تقریباً 5 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس دوران وہ 10 بار چھٹی لے کر اپنے گاؤں آ چکا تھا، اور 3-4 دن اپنے گھر والوں کے ساتھ گزار کر واپس چلا جاتا۔ اس نے کئی بار اپنے والدین سے اس بات کا تقاضا کیا کہ وہ گاؤں کی جو تھوڑی بہت زمین ہے اسے بیچ کر کراچی شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ویسے بھی اب گاؤں میں رہنے کا فائدہ کیا تھا، سوائے زمین کے اور کوئی آمدنی کا ذریعہ تو تھا نہیں جس کی وجہ سے وہ وہاں رہنے پر مجبور ہوتے۔ لیکن چونکہ اس کے والدین کو ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا اس گاؤں میں رہتے ہوئے، اور ان کے آباء و اجداد کا وہ گاؤں تھا، اس لیے انہوں نے اس کی یہ بات تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔
ये देखकर जमील ने भी उन्हें कराची ले जाने पर ज्यादा जोर देना मुनासिब न समझा और वापस जाकर बाकायदगी से पैसे भिजवाता रहा। वक्त का पहिया चलता रहा और माह साल गुजरते रहे। एक रोज उसे गांव से पैगाम मौसूल हुआ कि उसके चाचा रहीम का इंतकाल हो गया है। तो उसने फौरी गांव जाने के लिए होटल के मैनेजर से बात की, जिस पर उसे गांव जाने की छुट्टी मिल गई। होटल के मैनेजर ने उसे कुछ रकम एडवांस देने के साथ साथ कुछ रुपए अपनी तरफ से भी दिए ताकि उसे वहां पर किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जमील उसका शुक्रिया अदा करके पहली ट्रेन में अपने गांव की जानिब निकल पड़ा। शाम नगर के स्टेशन पर चूंकि बड़ी ट्रेनें नहीं रुकती थी, इसलिए वो पहले एक और शहर तक का टिकट लेकर वहां पहुंचा। फिर वहां से एक और लोकल ट्रेन में सवार होकर शाम नगर की जानिब रवाना हो गया। हर बार उसे इसी तरह अपने गांव जाना पड़ता था। लोकल ट्रेन चूंकि हर छोटे बड़े स्टेशन पर रुकती आई थी, इसलिए शाम नगर तक पहुंचते पहुंचते उसे रात हो चुकी थी। लेकिन अभी रात की स्याही पूरी तरह नहीं फैली थी। हल्का हल्का मलगजा अंधेरा चारों सू फैला हुआ था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जैसे गाड़ी आगे अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुई तो वो तन्हा ही वहां खड़ा था और उसके साथ कोई और मुसाफिर ट्रेन से नहीं उतरा था। सफरी बैग कंधे पर लटका कर वो प्लेटफॉर्म की हदूद से बाहर निकल आया और अपने गांव के जानिब जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। थोड़ी दूर तक चलने के बाद अचानक उसे ख्याल आया कि अगर वो गांव जाने वाले सीधे रास्ते के बजाय कब्रिस्तान के अंदर से जाए तो वो 1 घंटा पहले अपने घर पहुंच सकता था, क्योंकि कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता शॉर्टकट था और अक्सर गांव के लोग कभी कभार उस रास्ते के जरिए गांव तक का सफर करके जल्दी शाम नगर पहुंच जाते थे। कुछ देर तक यही सोचते रहने के बाद बिलाखिर उसने जल्दी घर पहुंचने की गर्ज से कब्रिस्तान के अंदर वाला रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया और उसी जानिब कदम बढ़ा दिए। कब्रिस्तान वाला रास्ता ज्यादा इस्तेमाल ना होने की वजह से झाड़ झनकार और गर्दो गुबार से अटा पड़ा था। यूं लगता था जैसे बहुत दिन हुए उस पर किसी ने सफर नहीं किया। रात आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैलाने लगी थी। आसमान पर इक्का दुक्का आवारा बादल अटकेलियां करते फिर रहे थे। उसके साथ ही हल्की हल्की हवा चलने लगी थी। कभी कभी चांद किसी बादल के टुकड़े के पीछे छुपता तो पल भर के लिए अंधेरा छा जाता, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे जमीन पर चांद की दूधिया चांदनी का हुस्न फैल जाता। आम दिनों में तो इस तरह की चांदनी बहुत भली लगती है, लेकिन जब माहौल सुनसान और वीरान हो तो इस तरह की चांदनी में आसेब, जिन्नात और शयातीन भी मौज मस्तियां करने के लिए निकल आते हैं। जमील बुनियादी तौर पर एक दलेर नौजवान था। वैसे भी शहर के निस्बत गांव के लोग ज्यादा बहादुर और जिंदा दिल होते हैं, क्योंकि उन्हें अक्सर नामसाइद हालात से वास्ता पड़ चुका होता है और वो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अपना हौसला बरकरार रखते हैं। शहरी लोग जरा सी तकलीफ पहुंचने पर वावेला मचाने लगते हैं और उनकी बहादुरी की मिसाल तो यह है कि एक छुपकली को देखकर उनके चेहरों के रंग फक हो जाते हैं। जमील आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम उठाता कब्रिस्तान के अंदर की जानिब बढ़ता रहा। झाड़ झनकार की वजह से उसे अपने कपड़े भी बचाने थे ताकि किसी कांटेदार झाड़ी में फंसकर वो फट ही ना जाए। रात का वक्त होने की वजह से हशरातुल अर्ज भी अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे थे। कभी कभी दूर कहीं से गीदड़ों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। कब्रिस्तान के अंदर दरख्तों की बहुतात थी, जिन पर बैठे हुए उल्लू जब चीखते तो माहौल में एक अर्ताश सा पैदा होता और उनके चीखने की आवाज़ों से दिल दहल जाता। वैसे भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है और वो ज़्यादातर इसी तरह के कब्रिस्तानों और वीरानों में अपने ठिकाने बनाते हैं। किसी भी डरावनी और दहशतनाक कहानी को पढ़ने में जो कैफियत इंसान पर तारी होती है वो उसे उतना महसूस नहीं करता जितना हकीकत में उसी माहौल में जाकर महसूस करता है। रात का मंजर, वीरान और सुनसान कब्रिस्तान और उसमें मौजूद दरख्तों पर बैठे उल्लुओं की चीखने की आवाज़ें, झाड़ियों में छुपे झिंगरों के शोर ने एक अच्छा खासा डरावना माहौल पैदा कर दिया था। जमील चाहे लाख बहादुर सही, लेकिन उस वक्त तो उसे भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि उसने सीधा रास्ता छोड़कर इस कब्रिस्तान वाला रास्ता क्यों चुना। लेकिन अब मजबूरी ये थी कि वो वापस भी नहीं पलट सकता था, क्योंकि वो काफ़ी फासले पर कब्रिस्तान के अंदर आ चुका था। वापस जाने का मतलब ये था कि घर पहुंचने में मज़ीद देर है और वो रात गहरी होने से पहले पहले घर पहुंच जाना चाहता था। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता गया कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कुछ फासले पर एक बरगद के दरख्त के तले कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा है। उसे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त सुनसान कब्रिस्तान में इस वक्त कौन ऐसा इंसान है जो इस दरख्त के नीचे बैठा आग जलाने की कोशिश कर रहा है। उसे अच्छी तरह मालूम था कि इस कब्रिस्तान में कोई गोरकन भी नहीं रहता,
जब किसी का कोई फौत हो जाता था तो कब्र बनाने के साथ साथ सब काम गांव के अफराद मिलजुल कर करते थे। इसलिए जो भी उस वक्त वहां मौजूद था वो आखिर कौन था और इस वीराने में क्या कर रहा था? ये ऐसे सवालात थे जिनका जवाब वहां जाकर ही मिल सकता था। इसलिए उसने वहां जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया और डरते डरते उस जानिब कदम बढ़ाने लगा। उस पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया था और उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि वो एक बहादुर नौजवान था, लेकिन इस वक्त न जाने ऐसा क्या था कि उसे खौफ महसूस हो रहा था। कुछ करीब जाकर उसने देखा कि वहां एक भयानक चेहरे वाली औरत बैठी आग जलाने की कोशिश कर रही थी और उसके करीब ही 2 काले कलोटे बच्चे खेलने में मसरूफ थे। उफ खुदाया, ये कौन लोग थे और इस वक्त इस वीरान कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे? उसकी कैफियत तो यूं हो गई थी जैसे काटो तो लहू नहीं। वो अंधेरे में आंखें फाड़े उसी जानिब देख ही रहा था कि अचानक एक जानिब से एक लंबूतरे चेहरे वाला एक लंबा आदमी हाथ में एक मरा हुआ गीदड़ उठाए आता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग भरता उसी औरत और बच्चों के नजदीक पहुंचकर रुका और जोर से वो मरा हुआ गीदड़ उनके सामने पटक दिया। ये लो, भून कर खिला दो बच्चों को, उसने चीखती हुई आवाज में उस औरत को मुखातिब करते हुए कहा। उसके लहजे से बेजारी झलक रही थी, जैसे उसकी तबीयत के खिलाफ कोई काम कह दिया हो। इस दौरान वो औरत आग जला चुकी थी। उसकी बात सुनकर उसने दांत नकोसते हुए जल्दी से सामने बड़े गीदड़ को उठाकर दहकने वाली आग पर रख दिया। उसने उसे इसी तरह सालिम ही आग पर फेंक दिया था। चूंकि हवा भी चल रही थी, इसलिए कुछ ही देर में उसके जलने की सड़ांड चारों तरफ फैल गई। बदबू इस कदर शदीद थी कि जमील को अपने नाक पर हाथ रखना पड़ा। गीदड़ को भूनकर उस औरत ने उसे दोनों बच्चों के सामने रखा ही था कि वो दोनों भूखे कुत्तों की तरह उस पर टूट पड़े। उनके साथ साथ उस औरत ने भी उसका गोश्त उठा उठाकर खाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो लंबा आदमी उस बरगद के पेड़ तले बैठा उन्हें खाते हुए देखने लगा। चंद ही मिनटों में उन्होंने पूरा गीदड़ यूं खत्म कर दिया जैसे एक मुर्गी का चरगा हो। दूसरे ही लम्हे उन बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। उनकी आवाजें यूं सुनाई दे रही थी जैसे कभी कभी रात के वक्त कुत्ते आसेब को देखकर रोते हैं। अब क्यों रो रहे हो? तुमने खाना तो खा लिया है? औरत ने गुस्से से उनकी जानिब घूरते हुए देखकर पूछा। हमारा पेट नहीं भरा, हमें और भूख लगी है, बच्चों ने दोबारा रोते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो वो सामने जो नौजवान खड़ा हमें देख रहा है, मैं उसे पकड़ कर लाती हूँ, फिर उसे भूनकर तुम्हें खिला देती हूँ। ये कहकर औरत जैसे ही जमीन से उठी, जमील जो टिकटिकी बांधे उनकी हरकत देख रहा था, उसे यकदम जैसे होश आ गया और उस औरत को जमीन से उठते देखकर वो सरपट कब्रिस्तान के अंदर उस रास्ते पर दौड़ने लगा जो उसके घर के जानिब जाता था। भागते हुए उसने बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर लटका बैग संभाला हुआ था कि उसे भागते हुए काफी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन वो अंधाधुंध भागे चला जा रहा था। साथ साथ वो आयतल कुर्सी का विर्द भी करने लगा। दरख्तों की बहुतात और रात का अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अंदाजे से उसी जानिब दौड़ा था। इस दौरान वो कई बार कब्रों के ऊपर से भी छलांग लगाकर गुजरा। फिर काफी दूर तक निकल आने पर उसने सांस फूलने की वजह से एक जगह ठहरकर सांस बहाल करना चाहिए और साथ ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर वही चुड़ैल गुस्से से पेचोताब खाती हुई दिखाई दी। दरख्तों से निकलकर वो खुली जगह पहुंच गया था, इसलिए अब वहां चांद की रोशनी पहुंच रही थी और उसे वो चुड़ैल भी दूधिया रोशनी में खड़ी साफ नजर आ रही थी। वो उसे यूं हाथ से निकलकर जाते देखकर अपने लंबे दांत कचकचा रही थी। शायद जमील के आयतल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो उसके पीछे नहीं आई थी, वरना शायद जमील भी उस गीदड़ के गोश्त की तरह उस खानदान की खुराक बन चुका होता। रात काफी फैल चुकी थी और आसमान पर चमकते सितारे उसको हैरत से देखकर सोच रहे थे कि ये कौन बेवकूफ है जो इस वीरान और भयानक कब्रिस्तान में चला आया है। कुछ देर तक वो चुड़ैल उसी की जानिब देखकर पेचोताब खाती रही, फिर यकदम वापस मुड़ी और एक जानिब भाग गई और चंद ही लम्हों में वहां से गायब हो गई। आज आयतुल कुर्सी की वजह से जमील की जान बच गई थी, वरना इससे आगे जमील कुछ ना सोच सका। रात के तकरीबन 8:30 बज चुके थे। अगर वो इन आफात में ना उलझा होता तो कब का घर पहुंच चुका होता। यही सोचकर उसने सफर दोबारा शुरू कर दिया। अभी वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि अचानक उसे कहीं से किसी के झूला झूलने की आवाजें सुनाई दी। उसे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त कौन कब्रिस्तान में झूला झूल रहा है। पहले तो उसने इसे अपना वहम ख्याल किया और सर झटकते हुए दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहे, मगर जब दोबारा वही आवाजें सुनाई दी तो वह रुक गया और कान लगाकर दोबारा
वही आवाज़ें सुनने की कोशिश की तो उसे फिर दोबारा वही आवाज़ें सुनाई दी जो कि दाएं जानिब कुछ दरख्तों की तरफ से आ रही थी। वो अजीब मखमसे में था कि वहां जाकर देखे या यहाँ से भाग जाए। वो भी इसी शशोपंज में था कि अचानक दरख्तों के अंदर से किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई दी। कब्रिस्तान के इस वीराने में रात के वक्त ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में किसी लड़की का होना समझ से बाहर था। ये कोई पिकनिक पॉइंट तो था नहीं कि जहां इस तरह आज़ादाना लड़कियां घूम फिर रही हों। एक लम्हा कुछ सोचने के बाद तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उन दरख्तों की जानिब चलने लगा जो ज़्यादा दूर नहीं थे। चांद की चांदनी उन दरख्तों के अंदर से छन छन कर नीचे ज़मीन पर पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां का मंजर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ फासले पर पहुंचकर एक और झाड़ी की ओट में खुद को छुपाकर जमील ने चेहरा उठाकर उस तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं कि उसके सामने एक बहुत से बड़े दरख्त की एक मोटी शाख पर एक बड़ा सा झूला बंधा हुआ था और उस पर एक नौजवान लड़की सफ़ेद फ्रॉक पहने झूला झूल रही थी और उसके झूले में से चिरचिराहट की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, जिससे उस वीराने में एक वहशत सी तारी होने लगी थी। वो सकते किसी हालत में उस पर नजरें जमाए देख रहा था कि अचानक झूला हवा में ही मौलिक हो गया और लड़की के दोनों पांव ऊपर की जानिब उठ गए। एक नज़र में यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर हवा में ही रोक दिया हो। बड़ा ही अजीब और हौलनाक मंजर था जिसे देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी वो वहां से भाग जाने का सोच ही रहा था कि अचानक फजा में निस्वानी हंसी की आवाज़ सुनाई दी और फिर यकलख्त वो हंसी खौफनाक और भयानक चीखों में बदल गई। उसके साथ ही दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते खुले आसमान पर उड़ने लगे। इसके साथ ही एक तरफ से बड़ी बड़ी और स्याह चमगादड़ों का गौल यकदम वारिद हुआ और चैं चैं की आवाज़ों से वहाँ का माहौल ख़राब करने लगा। वो इतनी तादाद में थी कि उड़ते हुए उनकी वजह से उस हिस्से में अंधेरा छा गया। हालांकि आसमान पर चांद अभी पूरे जौबन पर था। उसकी हालत तो यूं हो गई थी जैसे किसी ने उसे जादू की छड़ी से छूकर पत्थर का बना दिया हो। काफ़ी देर तक वो निस्वानी चीखें और चमगादड़ें मिलकर माहौल को डरावना बनाती रहीं। फिर यकदम यूं खामोशी छा गई जैसे किसी ने कोई मंत्र पढ़कर उस माहौल पर फूंक दिया हो और वो साकित हो गया हो। इस कदर खामोशी छा गई थी कि जमील को अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी थी। हत्ता कि आसपास बोलने वाले हशरातुल अर्ज तक खामोश हो चुके थे। शायद ये सब कुछ उसी आसेब के ज़ेरे असर था। खामोशी अब उसे काटने लगी थी। उसने वहां से भागने में ही आफियत समझी और झाड़ी की ओट से निकलकर जल्दी से घर जाने वाले रास्ते पर चलने लगा। अब वो जल्द अज जल्द कब्रिस्तान की हदूद से निकल जाना चाहता था। अभी उसने चंद कदम मजीद तय किए थे कि अचानक उसके सामने एक दूधिया धुआं चकराने लगा। वो हैरत से आंखें फाड़े और मुंह खोले उसकी तरफ देखने लगा। उसके देखते ही देखते उस धुएं ने एक इंसानी अहोले की शक्ल इख्तियार कर ली। एक नज़र में कोई रूह की तरह दिखाई दे रहा था जिसने अपने चेहरे पर लंबा घूंघट गिराया हुआ था। वो हवा में मौलिक था और उसके दोनों पांव भी धुएं के अंदर ही गायब थे, लेकिन उसके हाथों की उंगलियां साफ दिखाई दे रही थीं, जिनमें लंबे और मुड़े हुए नाखून चांद की चांदनी में खूब चमक रहे थे। उसे देखकर जमील के हलक में जैसे थूक अटक गया। वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन जैसे उसके गले को किसी ने दबोच लिया। दूसरे ही लम्हे वो धुआं तेजी से लहराता हुआ उसके जाने बढ़ा और इसी तेजी से उसके खुले हुए मुंह से उसके अंदर दाखिल होने लगा। जमील को यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज गर्म तेल उसके हलक के अंदर उंडेला जा रहा हो। वो बेहिस्सो हरकत खड़ा तकलीफ सहता रहा और दूसरे ही लम्हे उसे यूं लगा जैसे किसी ने उसकी कमर पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और ज़रब इतनी कारी थी कि वो मुंह के बल नीचे कब्र पर जा गिरा और तकलीफ की शिद्दत से उस पर बेहोशी तारी होने लगी। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगीं और दूसरे ही लम्हे वो बेहिस्सो हरकत किसी मुर्दा वजूद की मानिंद वहां पड़ा हुआ था और आखिरी एहसास यही था कि जैसे कोई फुटबॉल उसके पेट के अंदर उछल रहा हो। जमील के वालिदैन को उसके आने की इत्तला मिल चुकी थी, इसलिए जिस दिन उसने आना था वो दिन और जिस तरह उसने शाम नगर पहुंचना था उस ट्रेन के बारे में उन्हें बखूबी इल्म था। इसलिए आज काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब वो घर न पहुंचा तो उन्हें फ़िक्र होने लगी। जब रात होने लगी तो उन्होंने गांव के चंद नौजवानों को जमील के बारे में बताया तो वो सब उसे लेने के लिए शाम नगर स्टेशन जाने के लिए निकल खड़े हुए। उन्होंने अपनी हिफाजत के लिए डंडे हाथों में ले लिए थे और रोशनी के लिए 2-3 टार्चें भी घरों से ले ली थीं। स्टेशन की जानिब जाने वाले रास्ते पर चलते हुए
वो इधर उधर भी देखते जा रहे थे कि शायद जमील उन्हें दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक नजरें दौड़ाने के बावजूद भी वो उन्हें कहीं दिखाई न दिया। इसी तरह चलते चलते वो स्टेशन पर पहुंच गए, लेकिन वहां तो वो उजाड़ पड़ा हुआ था, ना कोई बंदा ना बशर। एक वीरानी सी चारों जानिब छाई हुई थी। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद वो सब वापस गांव जाने वाले रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है आज जमील आया ही ना हो, वरना अगर आया होता तो अब तक घर पहुंच चुका होता। लेकिन जिस तरह उसके वालिदैन ने यकीन के साथ उसके आने की इत्तला दी थी, इस पर उन्हें हैरानी भी थी कि अगर जमील के आने का इरादा बदल गया था तो उसे कम से कम दोबारा अपने माँ बाप को इत्तला ज़रूर देनी चाहिए थी। यही सोचते हुए वो आगे बढ़ते जा रहे थे। फिलहाल उन्हें टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि आसमान पर चांद अपनी पूरे आबोताब के साथ चमक रहा था। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था कि यकदम उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे दाएं जानिब नजर आने वाले वीरान कब्रिस्तान के अंदर से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें आ रही हों। क्या तुम लोगों ने भी ये आवाज़ें सुनी जो कब्रिस्तान के अंदर से आ रही हैं? एक कदरे लंबे कद के नौजवान ने उन सब से रुककर पूछा। हाँ, हमने भी वो आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन रात के वक्त इस वक्त इस वीरान कब्रिस्तान में कोई लड़की भला कैसे जा सकती है? उसके करीब खड़े एक और नौजवान ने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए जवाब दिया। अभी वो खड़े ही थे कि अचानक उसी तरफ से एक लड़की के चीखने की आवाज़ें गूंजने लगीं, और उसी वक्त दरख्तों पर बैठे बेशुमार परिंदे शोर मचाते खुले आसमान पर उड़ने लगे, और उसी लम्हे बड़ी बड़ी स्याह चमगादड़ों का एक गौल कहीं से नमोदार हुआ, जिसकी वजह से यकदम आसमान पर एक चादर सी तन गई और ज़मीन पर अंधेरा छा गया। परिंदों, चमगादड़ों और उस लड़की की चीखों ने मिलकर वहाँ का माहौल बहुत खौफनाक और दहशतनाक बना दिया था। काफ़ी देर तक वो नज़ारा रहा। उसके बाद यकदम यूं खामोशी छा गई जैसे किसी ने फूंक मारकर सारी फ़ज़ा को साकित कर दिया हो। वो सब खौफजदा नज़रों से एक दूसरे की जानिब देख रहे थे। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये माजरा क्या था। उस कब्रिस्तान के मुतालिक इतना तो वो जानते थे कि ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था और उनके गांव वाले इसी कब्रिस्तान में अपने प्यारों को दफनाते थे। लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ था कि किसी ने यहाँ इस तरह के वाक़यात के मुतालिक किसी से जिक्र किया हो। क्या ख्याल है हमीद भाई, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है? एक और नौजवान ने अपने साथी को मुखातिब किया। बिल्कुल, हमें चलकर देखना चाहिए, और हो सकता है कोई औरत किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उसे मदद दरकार हो। हमीद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। पागल न बनो, क्यों खामखा खुद को मुसीबत में डालते हो? पता नहीं वहाँ किस किस्म के हालात हों, ऐसा ना हो कि हम किसी मुसीबत में फंस जाएं। एक मनहनी सी चेहरे वाले शख्स ने खौफजदा लहजे में कहा। भाई रशीद, मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता था, तुम तो मेरे अंदाजे से ज़्यादा डरपोक निकले। हमीद ने उसकी तरफ देखते हुए तंजिया लहजे में कहा। उसकी ये बात सुनकर दूसरे हंसने लगे। हम सब मर्द हैं, तुम औरतों की तरह क्यों खौफजदा हो? हमें चलकर देखना चाहिए, घबराओ नहीं, हम सब इकट्ठे किसी भी मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। ये कहकर हमीद ने उनका हौसला बंधाया, और फिर कुछ देर पर सब ने तायद करते हुए उसी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। कब्रिस्तान के अंदर दरख्तों की बहुतात थी और चारों तरफ जंगली झाड़ियाँ मौजूद थीं। उनसे बचते बचाते वो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर दाखिल हो गए। काफ़ी दूर चलने के बाद उन्हें दूर से यूं लगा जैसे कोई शख्स किसी कब्र पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। वो वहीं रुककर उसे देखते रहे। काफ़ी देर तक जब उसके जिस्म में कोई हरकत महसूस न हुई तो उन्होंने उसके जानिब बढ़ना शुरू किया। चलते हुए उसके नज़दीक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने उसे सीधा किया तो उन सबको हैरत का शदीद झटका लगा। वो जमील था जिसकी तलाश में वो इस वक्त यहाँ ख्वार हो रहे थे। वो उसे स्टेशन पर ढूंढ रहे थे और वो इस वीरान कब्रिस्तान में बेहोशी की हालत में एक कब्र पर औंधा पड़ा था। एक नौजवान को थोड़े फासले पर एक सफरी बैग भी पड़ा हुआ मिल गया जो गालिबन जमील का ही होगा। उनमें 3-4 अफराद ने जमील को हाथों पर उठा लिया और उसका बैग एक और नौजवान ने अपने कंधे पर लटका लिया और उसे लिए गांव के जानिब जाने वाले रास्ते पर हो लिए। वो समझ गए थे कि जमील ने जल्दी घर पहुंचने के लिए कब्रिस्तान वाला शॉर्टकट रास्ता इख्तियार किया होगा, लेकिन यहाँ किसी मुसीबत में फंसकर बेहोश हो गया। अगर हमें उस लड़के के हंसने और चीखने की आवाज़ें सुनाई ना देती तो शायद हम कब्रिस्तान में कभी दाखिल ना होते, और शायद कुदरत भी हमें जमील के पास पहुंचाना चाहती थी, एक नौजवान ने चलते हुए कहा। बिल्कुल, वरना हम तो स्टेशन से सीधे घर चले जाते और जमील बेचारा सारी रात उसी कब्रिस्तान में पड़ा रहता और किसी जंगली जानवर का शिकार होकर उसका खाजा बन जाता। साथ चलते हमीद ने परेशान लहजे में जवाब दिया। इसी तरह चलते हुए और बातें करते वो गांव पहुंचे।
और सीधे जमील के घर के सामने पहुंचकर रुके। और दरवाज़ा खुलने पर जब उसके वालिदैन ने उनके कंधों पर जमील को देखा तो वो परेशान होकर रोने लगे। जमील को एक कमरे में एक चारपाई पर लिटा दिया गया और फिर उनके बताने पर कि किस तरह उन्हें स्टेशन से वापसी पर कब्रिस्तान के अंदर से एक लड़की के हंसने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। तो जब उन्होंने उसका खोज लगाने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता इख्तियार किया तो वहाँ उन्हें जमील एक कब्र पर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला था। इसके बावजूद कि रात के तकरीबन 10 बज चुके थे और गांव में तो इसे तकरीबन आधी रात ही कहा जाता है, मगर 2 नौजवान भागकर गांव के हकीम साहब को बुला लाए। हकीम साहब ने आते ही उसकी बेहोशी के मुतल्लिक पूछा तो उन्हें तफसील भी बताना पड़ी। ठीक है, मैं फ़िलहाल तो एक दवा देता हूँ जिससे इसे होश आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं मशवरा दूंगा कि मस्जिद के पेश इमाम को लाजमी तौर पर लाकर इसे दिखाना होगा, क्योंकि मुझे ये सब कुछ शैतानी काम लग रहा है जो कि दवा वगैरह से ठीक नहीं होगा। ये कहकर हकीम ने एक पुड़िया उन्हें थमा दी और साथ ही ताकीद की कि 1 चम्मच पानी में हल करके किसी न किसी तरह जमील के मुंह में उंडेल दें। जो नौजवान उसे लाए वही उसे दोबारा उसके घर छोड़ाए। इस दौरान जमील के वालिदैन ने वो पुड़िया पानी में हल करके उसके हलक में उंडेल दी थी। कुछ देर वहां रुकने के बाद सब एक एक करके अपने घरों को लौट गए और घर में जमील समेत उसके वालिदैन और उनकी छोटी बेटी ज़किया रह गए। जमील मुसलसल बेहोश था, लेकिन उसके वालिदैन को किसी कल चैन न था। वो बार बार जमील की जानिब देखते और अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को साफ करते जाते। खुदा खुदा करके रात गुजरी और सुबह का उजाला फैला तो जमील के अब्बू ने फजर की नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ी और इससे फारिग होकर इमाम साहब को लेकर घर के जाने बढ़े। रास्ते में उसने रात वाला तमाम वाक़या उनको बता दिया। इमाम साहब बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहे थे और साथ साथ अपना सर भी हिला रहे थे। घर पहुंचकर उन्होंने जमील की हालत देखी। उस पर नीम गनुदगी तारी थी। जमील की दोनों आंखें आधी खुली हुई थी, जैसे नींद की हालत में हो। इमाम साहब ने उसके करीब बैठकर उसका दायां हाथ अपने हाथ में पकड़कर उसकी शहादत की उंगली को अपनी 2 उंगलियों और अंगूठे की मदद से पकड़कर मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। अभी उसने आधा ही कुछ पढ़ा था कि अचानक जमील भूखे भेड़िए की तरह यकदम उठकर बैठा और तेजी से करीब बैठे इमाम साहब पर हमला कर दिया। इमाम साहब शायद इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। उसके फौरी हाथ छुड़ाने और खुद पर हमला होते देखकर वो लड़खड़ा कर एक जानिब गिर पड़े और जमील ने उछलकर उन्हें गर्दन से पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से उनके गले को दबाने लगा। ये मंजर देखकर जमील के वालिदैन घबरा गए और शोर मचाने लगे और साथ ही जमील को पकड़कर इमाम साहब को बचाने की भरपूर कोशिश करने लगे, लेकिन जमील के हाथ तो जैसे फौलाद बन गए थे। इसी असना में बाहर से 2 नौजवान कमरे में दाखिल हुए और वहां का मंजर देखकर यकदम घबरा गए और जैसे ही उनकी नज़र इमाम साहब पर पड़ी जिनकी गर्दन जमील के हाथों में थी, तो उन्होंने भागकर उन्हें जमील के गिरफ्त से आज़ाद कराया। फिर जल्दी से कहीं से एक मजबूत रस्सी लाकर उसके वालिद ने उन्हीं नौजवानों को थमा दी, जिसकी मदद से उन्होंने बड़ी मुश्किल से जमील को चारपाई के साथ बांध दिया। जमील की हालत किसी खूनखार भेड़िए की सी हो रही थी और उसके मुंह से गुर्राहटें निकल रही थीं। इमाम साहब तो आज़ाद होते ही वहां से यूं भागे जैसे एक लम्हा की देर हो गई तो फिर उन्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों नौजवान तो अचानक उसकी खबर लेने के लिए वहां पहुंचे थे और अगर कुछ देर और हो जाती तो शायद इमाम साहब इस दुनिया से कूच कर चुके होते। जमील की हालत से साफ जाहिर था कि उस पर किसी आसेब का साया हो गया है और इसमें कोई शक भी नहीं था, क्योंकि रात जिस हालत में और जिस जगह से उसे उठाकर लाया गया था वहां का मंजर वो पहले ही देख चुके थे। ये दोनों भी रात उन्हीं दीगर लोगों में शामिल थे जो जमील को कब्रिस्तान से उठाकर लाए थे। जमील की हालत देख देख कर उसके वालिदैन का बुरा हाल था और वो रो रो कर अपने बेटे की सेहत के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। मेरे ख्याल में हमें फौरी तौर पर शाह बाबा के पास जाकर उन्हें सारी हकीकत बताना होगी, ऐसा ना हो कि देर करने से जमील को कोई नुकसान पहुंच जाए। एक नौजवान ने कहा। जी बिल्कुल ठीक कहा, हमें फौरी तौर पर वहां चलना चाहिए और कोशिश करेंगे कि शाह बाबा हमारे साथ आकर जमील को खुद देखें। दूसरे नौजवान ने जवाब दिया। शाह बाबा करीब ही एक खानका के मजावर थे, अल्लाह वाले थे। अक्सर लोग उनके पास तावीज़ धागे और दम करवाने जाते थे। वो फी सबीलिल्लाह लोगों के काम करते थे और बहुत नूरानी शख्सियत के मालिक थे। उस वक्त दोनों नौजवान उनके पास बैठे तमाम तफसील बता रहे थे और शाह बाबा के चेहरे का रंग सुर्ख होता जा रहा था। उनके बात ख़त्म करते ही शाह बाबा चंद लम्हों के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर मुंह ही मुंह में पढ़ने लगे। फिर यकदम अपनी आंखें खोल दी। उनके चेहरे पर गुस्से के आसार थे।
उन्होंने अपने पास बैठे चंद और लोगों को कल आने का कहा और फौरी तौर पर इन दोनों नौजवानों के साथ जमील के घर की तरफ रवाना हो गए। उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि जमील को बहुत जालिम किस्म का आसेब काबू कर चुका है और अगर उसका फौरी तौर पर तोड़ ना किया गया तो किसी भी वक्त वो जमील को मार डालेगा। जल्दी वो जमील के घर में थे। शाह बाबा ने उन सबको कमरे से बाहर जाने के लिए कहा और दरवाज़ा बंद कर दिया। उनके हाथ में लकड़ी के मोटे मोटे दानों वाली एक तस्बीह थी जिसमें सिर्फ 8 दाने थे, जिन्हें वो जल्दी जल्दी घुमा रहे थे और साथ में कुछ पढ़ पढ़ कर जमील पर फूंकते भी जा रहे थे। अभी चंद ही मिनट हुए थे कि जमील यकदम उठकर बैठ गया। उसके सर के तमाम बाल सरकंडों की तरह खड़े हो गए और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। साथ ही उसके मुंह से एक जनाना आवाज़ निकली, नहीं छोड़ूंगी, मैं इसको मार दूंगी, इसने मेरे बच्चों का खाना खराब किया है। शाह बाबा यकदम रुक कर उसकी बात सुनते रहे और फिर बोले, कौन हो तुम और कैसे इसने तुम्हारा खाना खराब किया? इसने हमारे रहने की जगह पर चलते हुए खाने पर पाँव रख दिया था जिससे तमाम खाना खराब हो गया और मेरे बच्चों को बहुत तकलीफ पहुंची, इसलिए मैंने इसके जिस्म पर अपना कब्जा कर लिया और मैं इसको बहुत जल्द गर्दन तोड़कर मार दूंगी। जमील के मुंह से वही आवाज़ निकली, क्या तुम इसे माफ़ नहीं कर सकती? शाह बाबा ने कहा, वैसे भी इसने जानबूझकर तो खाने पर पाँव नहीं रखा था। नहीं, मुझे इस आदमजात पर बहुत गुस्सा है, मैं इसे माफ़ नहीं करूंगी। वही आवाज़ दोबारा सुनाई दी। इस बार उसके लहजे से नफरत झलक रही थी। ठीक है, फिर तुम खुद मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम इसे माफ़ नहीं करोगी तो फिर मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। ये कहकर शाह बाबा ने जल्दी से तस्बीह के दानों को दोबारा घुमाना शुरू किया और फिर 8 दानों को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें आपस में बल दे दिया। ऐसा करते ही जमील के मुंह से तकलीफ से चीखें निकलने लगी। शाह बाबा जैसे जैसे बल दे रहे थे वैसे वैसे कमरे में एक औरत की चीखों की आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। शाह बाबा मुसलसल पढ़ पढ़कर जमील पर फूंके भी मार रहे थे। फिर चीखें इस कदर तेज़ होने लगी कि शाह बाबा को भी अपने कानों पर हाथ रखने पड़े, लेकिन इससे पहले उन्होंने विर्द मुकम्मल करके एक ज़ोरदार फूंक जमील पर मारी और यकदम तस्बीह को एक झटके से तोड़ डाला। तस्बीह के टूटते ही कमरे में यकदम एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी बड़ी सी हड्डी को दरमियान से तोड़ दिया गया हो। उस आवाज़ के गूंजते ही कमरे में एक भौचाल सा आ गया। कमरे में रखी तमाम चीज़ें इधर उधर उड़ने लगी और कुछ चीज़ें ज़मीन पर तड़ातड़ गिरने लगीं और दूसरे ही लम्हे जमील के खुले मुंह से एक धुआं निकलकर कमरे में फैलने लगा। उस धुएं में से एक औरत की रोने की आवाज़ें आ रही थी। ये कैफियत चंद मिनट रही और फिर वो धुआं बड़ी तेज़ी से कमरे में बने एक रोशनदान से लहराता हुआ बाहर निकल गया। शाह बाबा समझ गए थे कि उसके दम से आसेब की कमर की हड्डी टूट चुकी थी और अब वो वापस अपने ठिकाने पर पहुंचकर सारी उम्र सिसक सिसक कर गुजारेगी। उसके बाहर निकलते जमील दोबारा चारपाई पर ढेर हो चुका था। शाह बाबा ने फौरी कमरे का दरवाज़ा खोला और उन सबको अंदर आने के लिए कहा, मैंने उस आसेब को भगा दिया है और उसकी कमर की हड्डी भी तोड़ दी है, इसलिए अब चंद घंटों में जमील बेटे की तबीयत बहाल हो जाएगी। मैं ये एक तावीज़ दे रहा हूँ, इसे पानी भरी बोतल में डालकर वक्फे वक्फे से जमील को पिलाते रहना, इंशाल्लाह ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जमील के वालिदैन ने शाह बाबा का शुक्रिया अदा किया और दोनों नौजवान उन्हें छोड़ने के लिए खानकाह की जानिब रवाना हो गए। रास्ते में उन दोनों ने शाह बाबा से पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जो सबके सामने बताया था इससे आगे कुछ कहने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें सख्ती से ताकीद भी कर दी कि कभी भी दोबारा रात के वक्त उस कब्रिस्तान में जाने की कोशिश ना करें और अगर किसी मजबूरी के तहत जाना भी पड़ जाए तो चंद अफराद इकट्ठे होकर जाएं ताकि किसी किस्म के नुकसान से बचा जा सके। चूंकि जमील रात के वक्त अकेला उस वीरान कब्रिस्तान की तरफ चला गया था, इसलिए उसका वास्ता जिन्नात से पड़ गया। वैसे भी इस तरह के शरीर शयातीन इस तरह की वीरान जगहों पर ही बसेरा करते हैं। इसी तरह बातें करते हुए वो खानकाह के नज़दीक जा पहुँचे तो शाह बाबा ने उन्हें वापस जाने का कहा और ख़ुद भी खानकाह में अपने कमरे की जाने पड़ गए। उसके बाद जमील की हालत बेहतर होने के बाद गांव वालों ने कुछ उलमाए कराम से बाहमी मशवरा करके एक नंबरदार के जानिब से रज़ाकाराना तौर पर मिलने वाली ज़मीन पर एक नया कब्रिस्तान बना लिया और आइंदा से उसी कब्रिस्तान में अपने प्यारों को दफनाने लगे और दोबारा कभी भूल कर भी उस वीरान कब्रिस्तान का रुख नहीं किया जहाँ खौफनाक जिन्नात और चुड़ैलों का बसेरा था।